everyone. How are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we are going to start a very new chapter of class 6, that is chapter number 18 about the habitat and adaptations. Okay, let's start the chapter. So student, the very first line is that where would you look for a deer in a forest? Would you look for them in the same places? You would look for birds and snakes? Probably not. So you would expect to find deer among the trees and bushes of the forest, the birds in the branches of the trees and the snakes in the soil. So student, what they saying कि क्या हमें सभी डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही मिल जाते हैं? अगर आप फॉरेस्ट पे जाके डियर को ही देखने की कोशिश करेंगे तो क्या डियर को आप उसी सेम जगह पे ढूंढेंगे जहाँ पे बर्ड्स को आपने देखा है? ओके, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, प्रोबेबली नॉट. व्हाई? बिकॉज डियर या कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल अपने अपने सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या करता है, डिफरेंट प्लेस पे रहता है, एक ही पर्टिकुलर जगह पे भी. ओके, जैसे कि आप क्या करोगे, डियर को कहाँ देखोगे? या तो ट्रीज के बीच में या फॉरेस्ट में जो बुशेस हैं वहां पर आप ऑब्जर्व करोगे. बर्ड्स को ट्रीज के ब्रांचेस पे आप ऑब्जर्व कर पाओगे एंड स्नेक को सॉइल के अंदर. ओके, so now we have habitat. What is habitat? The word habitat literally means inhabits or it dwells. It dwells. तो word habitat का मतलब होता है inhabits, यानी कि उसके अंदर कौन रहता है या कौन वहाँ पे ड्वेल करता है, यानी कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं या उस जगह पर जहाँ पे आप एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को फाइंड आउट कर सकते हो. दैट इज द हैबिटेट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. The habitat of an organism actually represent environmental conditions suitable for the proper growth of organism. So एक particular organism का habitat actually क्या करता है, उन environmental conditions को represent करता है जो उस organism की proper growth के लिए suitable है. ओके, एक हैबिटेट क्या करेगा, उस ऑर्गेनिज्म को फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करेगा. प्लांट्स का भी हैबिटेट होता है, जैसे कि द ब्यूटिफुल ऑर्चर्ड एग्जाम्पल ग्रोज फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्रीज इन द रेन फॉरेस्ट. ओके, सो द ब्रांचेस ऑफ दीज ट्रीज आर द ऑर्चर्ड्स. हैबिट्स. Habitat usually refers to a large area such as pond, forest and estuary and desert or an ocean. So habitat आपका क्या होता है, एक बहुत बड़ा एरिया या एक प्लेस होता है जहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, whether they are plants or they are animals. ठीक है, चाहे वो आपका पॉन्ड हो, फॉरेस्ट हो, एस्टुअरी हो, ठीक है, एंड डेजर्ट हो, ओशन हो, it could be any place. Now, types of habitats. So, majorly 3 types के habitats है, that is aquatic, terrestrial and aerial or arboreal. First of all, we have aquatic habitat. Aquatic habitat आपके fresh water या marine water भी हो सकता है, that is sea water. ठीक है, इनके अंदर सारे lake, reservoir, ponds, springs, stream, rivers, seas, जितनी भी water bodies है उन सभी को include किया जाता है in the aquatic habitats. The next we have terrestrial habitat. Land जो है, land सबसे ज़्यादा variable habitat है. Forest, desert, mountains, ये सभी आपके terrestrial habitat में include किए जाते हैं. Then we have aerial और arboreal. So although air is not a suitable medium, see air जो है एक suitable medium नहीं है life को support करने के लिए, but कुछ terrestrial animals हैं जो adapted हो चुके हैं अपने aerial existence के लिए. For example, insect, bird, bats, these are common examples which are belonging to this category. Okay. Then we have adaptations to environmental in plants. So अब environment के लिए plants में क्या क्या adaptations हैं, let's discuss about it. So the great majority of plants, काफ़ी majority of plants है जो कि average और optimum water supply में रहते हैं. These plants, इन plants को mesophytes कहा जाता है. Okay, there are many plants which became adapted to excessive water supply. ओके, एंड काफ़ी सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि एक्सेसिव वाटर सप्लाई के लिए अडेप्टेड हो चुके हैं, इनको हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है. एंड कुछ ऐसे प्लांट्स हैं लाइक कैक्टी जो कि आपकी ड्राई हैबिटेट में इजीली ग्रो कर सकते हैं बिकॉज दे हैव अडेप्टेड लाइक दिस. ओके, एंड इन प्लांट्स को जीरोफाइट्स कहा जाता है. देन सम प्लांट्स बिलोंग टू माउंटेन रीजन्स, कुछ माउंटेन रीजन्स में भी बिलोंग करते हैं एंड ये वहाँ की कंडीशंस के अकॉर्डिंग प्लांट्स अडेप्ट हो चुके हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट अडैप्टेशंस इन मेसोफाइट्स. तो मेसोफाइट्स कौन से थे, जो कि मॉइस्ट हैबिटेट में एंड वेल एरेटेड सॉइल में ग्रो करते हैं, ऐसे प्लांट्स को मेसोफाइट बोला जाता है. अब मेसोफाइट के अंदर क्या क्या अडैप्टेशंस हैं. नंबर 1, देयर रूट सिस्टम इज वेल डेवलप्ड. मेसोफाइट का जो रूट सिस्टम है वो काफ़ी वेल डेवलप्ड होता है. इनकी स्टेम जनरली एरियल होती हैं एंड उनमें काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं. देन लीव्स आर जनरली लार्ज. इनकी लीव्स काफ़ी लार्ज होती हैं, ब्रॉड होती हैं, थिन होती हैं एंड वेरिएबल यानी कि वेरी करती हैं in shape. Okay. Now next is adaptation hydrophytes. Hydrophytes कौन से थे, जो कि यूजुअली ये ज़्यादातर उन्हें एक एक्सेसिव वाटर सप्लाई चाहिए ग्रो करने के लिए. सो दीज प्लांट्स डू नॉट फेस द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपिरेशन. ये प्लांट्स ट्रांसपिरेशन प्रॉब्लम को फेस नहीं करते हैं एंड इनके पास क्या क्या अडेप्टेशंस है. नंबर 1, रूट्स.
सो ड्यू टू प्लेंटी ऑफ वाटर, क्योंकि इनके पास एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, सो जो इन प्लांट्स की रूट्स होती है वो आपकी सेकेंडरी इंपॉर्टेंस के लिए है। एंड इस तरीके से रूट्स आर ईदर पुअरली डेवलप्ड, इसलिए इन प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं या तो वो बहुत पुअरली डेवलप्ड होती हैं एज इन हाइड्रेला, या कंप्लीटली एब्सेंट भी होती हैं एज इन सेरेटोफाइलम। ओके, देन you can see this is the hydrophyte named as hydrilla. Then हाइड्रोफाइट्स के स्टेम्स के बारे में बात करें तो इन मोस्ट केसेस ज़्यादातर हाइड्रोफाइट्स में स्टेम जो होती है लॉन्ग, स्लेंडर, स्पॉन्जी एंड फ्लेक्सिबल होती है। एग्जाम्पल हाइड्रिला एंड पुटर्मोजेटन। ओके, नेक्स्ट इज लीव्स। सो हाइड्रोफाइट्स में लीव्स आर थिन, long and ribbon shaped as in Vallisneria or finely dissected as in Ceratophyllum. Okay, floating leaves are large. इनकी जो floating leaves होती है काफ़ी large होती हैं and flat होती है as in Nilimbo. Okay, now next we have adaptations in xerophytes. So xerophytes कौन से plants हैं जो कि usually dry habitats पे रहते हैं? Okay, and ये adapted हो चुके हैं to grow in dry habitat under drought conditions. Okay, in these habitats, इन habitats में rains जो होती है काफ़ी कम होती है। ओके, ज़ीरोफाइट्स हैव टू अडेप्ट देमसेल्व्स। तो ज़ीरोफाइट्स को खुद को अडेप्ट करना पड़ता है सो दैट ये अपनी बॉडी के अंदर वाटर स्टोर कर सके एंड वाटर लॉस को अवॉइड कर सके, ड्राई कंडीशंस को अवॉइड कर सके। एज सच दे हैव द फॉलोइंग अडेप्टेशंस। अब इनके पास क्या क्या अडेप्टेशंस है? नंबर 1, दे आर एनुअल। ये क्या ऐसे एनुअल प्लांट्स होते हैं यानी अपने लाइफ साइकिल को काफ़ी शॉर्ट टाइम पीरियड में कंप्लीट कर लेते हैं टू अवॉइड ड्राई कंडीशंस। ओके, इन प्लांट्स की स्टेम, लीव्स, रूट्स फ्लैशी होती हैं सो दैट ये वाटर को क्या कर सके, अपनी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट कर सके ड्यूरिंग वेरी रेयर रेनफॉल। ओके, मैनी ऑफ दीज प्लांट्स, ज़्यादातर इन प्लांट्स में क्या होती है, स्पाइंस होती हैं लीव्स की जगह सो दैट इनमें वाटर लॉस ना हो। एंड उसके साथ साथ इन ये प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी लीव्स को डेफिशिएंट रेनफॉल यानी कि जब बहुत कम बारिश होती है उस टाइम पे उस कंडीशन के अंदर ही अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं। ओके, कैपेरिस, ओपुंटिया, यूरोफीबिया, ये सभी क्या है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ। नाउ अडेप्टेशंस इन माउंटेनियस रीजन्स। अब माउंटेनियस रीजन्स के क्या क्या अडेप्टेशंस हैं? सो माउंटेनियस रीजन्स आपके कोल्ड होते हैं एंड दे एक्सपीरियंस स्नोफॉल एंड रेनफॉल। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादातर क्या होता है, स्नोफॉल एंड रेनफॉल होता रहता है। एज सच प्लांट्स इन दीज रीजन्स आर अडेप्टेड टू दीज कंडीशन एंड इसी एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग माउंटेनियस रीजन्स के प्लांट्स भी अडेप्ट हो चुके हैं। ठीक है, सो माउंटेनियस रीजन्स में पोन बेयरिंग ट्रीज होते हैं या जिन्हें कॉनिफर्स कहा जाता है, दे आर इन अबंडेंस। ओके, जैसे कि पाइन, स्प्रूस एंड द टफ नीडल्स। ठीक है, कॉनिफर्स की जो टफ निडल जैसी लीव्स होती हैं ये रेन वाटर को ईजिली स्लाइड ऑफ करने में हेल्पफुल होती है। नाउ वी कम टू अडेप्टेशंस टू एनवायरनमेंट इन एनिमल्स। अब एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एनिमल्स में कैसे कैसे अडेप्टेशंस है? सो लाइक प्लांट्स की तरह एनिमल्स टू हैव टू फेस द सिमिलर प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द अवेलेबल वाटर। सो प्लांट्स की तरह ही एनिमल्स को भी सेम प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैबिटेट में, ओके, इन रिस्पेक्ट ऑफ द अवेलेबल वाटर। सो एनिमल्स हैव डेवलप्ड देयर बॉडी। सो एनिमल्स ने भी अपनी बॉडी को डेवलप कर लिया है सो दैट वे अपने वेरियस हैबिटेट के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर सके। सो नंबर 1 वी हैव एक्वेटिक अडेप्टेशंस। सो फिशेस क्या है? फिशेस आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो कि एक्वेटिक लाइफ के लिए वेल अडेप्टेड होते हैं एंड उनके बॉडी स्ट्रक्चर में कुछ साइंस हैं अडेप्टेशंस के, जैसे कि नंबर 1 स्ट्रीमलाइन बॉडी, हेड, बॉडी एंड टेल। सो फिशेस के जो हेड, बॉडी एंड टेल वाला पार्ट होता है वो कंप्रेस्ड होता है सो दैट उन्हें एक लॉन्ग स्ट्रीमलाइन बॉडी मिल सके। इट इज सूटेड फॉर एक्टिव मूवमेंट। ठीक है, वाटर के अंदर, पानी के अंदर एक्टिवली मूव करने के लिए इनकी बॉडी सबसे ज़्यादा सूटेड होती है बिकॉज इनकी बॉडी काफ़ी कम रेजिस्टेंस ऑफर करती है अगेंस्ट वाटर। नेक्स्ट दे हैव फिन्स एंड गिल्स। फिन्स एक पैडल्स की तरह एक्ट करते हैं जो कि इनके मूवमेंट की डायरेक्शन को कंट्रोल करेंगे एंड दिस हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, पानी के अंदर गैसेस के एक्सचेंज करने के लिए फिशेस के पास गिल्स होते हैं एंड ये इनके अंदर एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह वर्क करते हैं। ओके, नाउ स्विम, दैट इज एयर ब्लैडर। सो बाय यूज ऑफ दीज ब्लैडर्स, इन ब्लैडर्स का यूज करके फिशेस क्या कर पाती है, खुद को मेंटेन कर पाती हैं एक डिजायर्ड डेप्थ ऑफ वाटर पर। नेक्स्ट इज डेजर्ट अडेप्टेशन। सो अब डेजर्ट एनिमल्स के अडेप्टेशंस को डिस्कस करेंगे। सो द अडेप्टेशंस ऑफ डेजर्ट एनिमल्स आर एक्चुअली द एडजस्टमेंट टू लिव विदाउट वाटर, टू कंजर्व वाटर एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट हाई टेम्परेचर, सैंड एंड एलिनीज। व्हाट दे सेइंग कि डेजर्ट एनिमल्स के जो अडेप्टेशंस है वो एक्चुअली क्या है कि उनको खुद की बॉडी को एडजस्ट करना है कि वो विदाउट वाटर सर्वाइव कर सके, अपनी बॉडी में वाटर कंजर्व कर सके, खुद की बॉडी को हाई टेम्परेचर, सैंड एंड एनिमीज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर सके। So now these are the sign of adaptations in desert animals. Number 1, most desert rodents can live on dry sea. ज़्यादातर जितने भी desert rodents हैं वो क्या dry seas पे survive कर सकते हैं और उन्हें ज़्यादा पीने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं होती है।
सम रॉडेंट्स, कुछ रॉडेंट्स है जो कि फ्लैशी कैक्टी या अदर प्लांट्स को खाते हैं जिनके अंदर वाटर स्टोर रहता है। ओके, डेजर्ट बर्ड्स को भी क्या ओकेजनल ड्रिंक चाहिए होता है फ्रॉम ड्यू एंड अदर सोर्सेज, यानी कि ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट इन्हें भी नहीं होती है। देन मोस्ट डेजर्ट एनिमल्स, ज़्यादातर डेजर्ट एनिमल्स क्या करते हैं, वो ग्राउंड में डीपली बुरो करते हैं सो दैट वो सन की डायरेक्ट रेज से क्या कर सके, खुद को बचा सके। लिजर्ड्स जो है अपनी बॉडी को होल्ड कर सकती हैं अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड के कॉन्टैक्ट से दूर वो अपनी बॉडी को होल्ड कर पाती हैं ऑन देयर लॉन्ग थिन लेग्स, अपने लॉन्ग थिन लेग्स के थ्रू। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द नेचुरल एनिमीज, ओके, नेचुरल एनिमीज के अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन अचीव करते हैं वो अपने प्रोटेक्टिव कलरेशन और स्पाइनी कवरिंग के थ्रू करते हैं विच इज ऑन देयर बॉडी, ठीक है। इसके साथ साथ इन एनिमल्स के लॉन्ग लिम्स होते हैं, पैडेड फीट होते हैं सो दैट ये इजिली सैंड पर रन कर सके टू लॉन्ग डिस्टेंसेस फॉर फूड एंड वाटर। उसके अलावा दे हैव ऑल्सो वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन भी इनके वेल डेवलप्ड हैं ऑफ साइट, हियरिंग एंड स्मेल, सो दैट ये खुद को डिफेंस एंड ऑफिस में हेल्प कर सके। नेक्स्ट इज आर्बोरियल अडेप्टेशंस। आर्बोरियल अडेप्टेशंस एनिमल्स को हेल्प करते हैं इन क्लाइंबिंग एंड यूजुअली वेरियस एनिमल्स में होते हैं लाइक स्क्विरल, लीमस, रोडेंट, लिजर्ड एक्सेट्रा, ठीक है। अब कुछ आर्बोरियल अडेप्टेशंस दे हैव डिस्कस्ड यू। नंबर 1, स्टाउट बॉडी, इनकी बॉडी स्टाउट होती है, इनके लिम्ब गिल्डर्स भी स्टाउट होते हैं जो इनकी बॉडी को क्लाइंब यानी कि किसी भी चीज़ के ऊपर चढ़ने में हेल्पफुल होते हैं। इनके वेल डेवलप्ड क्लॉज हैं जो इन्हें ग्रास्प एंड क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं। एडेसिव पैड, यानी कि इन सम एनिमल्स लाइक ट्री फ्रॉग, कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि ट्री फ्रॉग, इनमें फिंगर्स एंड टोज के ऊपर या उनके नीचे एडेसिव पैड्स होते हैं जो इन्हें क्लाइंब करने में एंड ट्रीज पे क्लिंग करने में हेल्पफुल होते हैं। Next is adaptations in mountainous regions. So you have already read about the climatic conditions of mountainous regions. जैसे कि हमने पहले भी mountainous regions की climatic conditions को discuss किया. So जो animals in regions में रहते हैं वो भी इन्हीं conditions के according adapt हो जाते हैं. Okay, because यहाँ पे temperature काफ़ी ज़्यादा cold होता है ना? So they have thick skin और fur. So यहाँ के जो animals हैं इनकी body पर thick skin और fur होता है जो इन्हें cold से protect करता है. Yaks have long hair to keep them warm. Yaks के पास long hair होते हैं जो इन्हें warm रखते हैं. The mountain goat, this can see, you can see this is mountain goat. So mountain goats के strong hooves होते हैं so that ये mountains के जो rocky slopes हैं उनके ऊपर आसानी से walk कर सके. Okay, the snow leopard के पास एक thick fur होता है उनकी पूरी body पर, including its feet and toes. Okay, and this protect it from cold when it walks on the snow. सो स्नो लेपर्ड की पूरी बॉडी पर वाइट कलर का फर होता है, ओके, एंड काफ़ी थिक होता है, इंक्लूडिंग टोज एंड फीट एंड टोज में भी इनके वाइट फर प्रेजेंट होता है. एंड ये फर इनको कोल्ड कंडीशन से, कोल्ड वेदर से प्रोटेक्ट करता है स्नो लेपर्ड को जब स्नो पे क्या करता है, वॉक करता है. ओके, जब स्नो लेपर्ड स्नो पे वॉक करेगा तो ये फर ही है जो उन्हें कोल्ड कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है. So the chapter is completed over here. I hope you all must have understood the different types of adaptations which are there in different types of plants and animals according to their particular habitat. That's all for today. We'll meet you very soon. Till then, take care and thanks to everyone.